Yesterday we were discussing mass defect. Right. So what is mass defect? See, जब ये एक न्यूक्लियाई फॉर्म होता है, suppose there's a nuclei which is composed of maybe 6 protons and 6 neutrons. 6 protons and 6 neutrons, right? Mass of each proton be mass of, say, mp, and n be mass of each neutron. So what do you expect the mass of nuclei to be? So mass of nuclei we expect to be how much? 6 times mass of proton plus 6 times mass of neutron, right? We expect total mass of the nuclei to be 6 times mass of proton plus 6 times mass of neutron. As we all know, these are fundamental particles and mass of each proton is same, each neutron is same. So we expect the total mass of the nuclei to be 6 times mass of proton and 6 times plus 6 times mass of neutron. But it is observed that mass of nuclei is lesser than, it is observed, than mass of nuclei, or I'll better use observed mass of nuclei is lesser than the calculated mass, lesser than the calculated mass. To which we say is, to which we say mass of nuclei defects. There is some difference in the calculated mass and observed mass. Observed mass is found to be lesser than the calculated or expected mass, right? To which we say that mass of nuclei defects, right? आ रहा समझ में? हाँ सर. हेलो. हाँ. भैया हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? वी एक्सपेक्ट कि जितने न्यूट्रॉन है और जितने प्रोटॉन है दोनों का टोटल मास निकाल लो, उतना मास होना चाहिए आपके न्यूक्लियाई का, बट उतना मास नहीं निकला, उससे कम निकला. सो टू दिस वी से न्यूक्लियाई डिफेक्ट्स इन मास और न्यूक्लियाई मास ऑफ न्यूक्लियर डिफेक्ट्स, राइट? ओके. एंड हाउ डू वी कैलकुलेट मास डिफेक्ट? वी डिनोट इट बाय डेल्टा एंड वी कैलकुलेट इट एज, अगर एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर z है तो उसमें प्रोटॉन्स कितने होंगे? z into mass of proton plus mass number is a, so a minus z is number of neutrons, so a minus z into mass of neutrons, this minus observed mass, this is observed mass and this is calculated mass, right? So capital M be mass of nuclei, then this is mass defect, right? हेलो. तो ये हो गया आपका मास डिफेक्ट. नाउ देयर इज अ वर्ड बाइंडिंग एनर्जी. देयर इज अ वर्ड बाइंडिंग एनर्जी. वो क्या होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड सिलेबस में, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. सो बाइंडिंग एनर्जी. सो व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी? सी, let us assume that there is a isolated proton. This is what? Isolated proton. Now, if you have to bring another proton from infinite to this distance, don't you think you will have to do some work? You'll have to do some work. No? यहाँ से infinite से अगर इसको एक short distance में, distance of the order 10 raised to minus 14 meter, 10 raised to minus 5, इतने पास बनाना, तो you'll have to do some work, right? फिर और protons इनको भी यहाँ लाना, you'll have to do some work, right? न्यूट्रॉन भी लाने हैं, न्यूट्रॉन्स भी यहाँ लाने. So basically we have to bind the nucleus. That is, we have to put lot of nucleons, that is protons and neutrons, in a very small volume.
size of which is of the order 10 raised to minus 14 meter. So we need to do some work, right? आ रहे हैं समझ में? Now, आप ये छोड़ देना, एक कॉमन कंफ्यूजन हो जाता है कि आर वी डूइंग दैट वर्क अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्शन? आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो, सी, पहले तो आपने ये इमेजिन कर लिया कि हाँ एक आइसोलेटेड प्रोटॉन रखा हुआ, कोई फोर्स सोर्स कुछ नहीं, कोई इंटरेक्शन नहीं किसी के साथ। बट अगर आपको बहुत सारे ऐसे प्रोटॉन्स ला के असेंबल करना है, न्यूक्लियस को असेंबल करना है, तो यू विल हैव टू डू सम वर्क। ये आपको कन्विंसिंग लग रहा है? हाँ। नाउ सब लोगों के मन में कंफ्यूजन हो जाता है कि दैट वर्क इज डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। ये आप दिमाग से निकाल दो कि इट इज ओनली इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, क्योंकि उस लेवल पे और भी फोर्सेस इन्वॉल्व हो जाते हैं, राइट? वहां पे उस रेंज में न्यूक्लियर फोर्सेस भी आ जाते हैं पिक्चर में। तो डोंट थिंक कि सिर्फ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्सेस के अगेंस्ट हम वर्क कर रहे हैं, और भी कुछ फोर्सेस हैं। तो डोंट कंसिडर, मतलब आप सोचो कि सर फिर तो बड़ा इजी है मेजर करना, मैं मेजर कर लेता हूँ कैसे, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस है, यहाँ लेके आऊंगा और पोटेंशियल एनर्जी निकाल लूंगा, वो वर्क डन हो जाएगा। वैसा आपको नहीं सोचना, राइट? बिकॉज वहां पे और भी कुछ फोर्सेस पिक्चर में आते हैं, न्यूक्लियर फोर्स है, जो भी हम लोग डिस्कस भी करेंगे डिटेल में, राइट? आ रही बात समझ में? बट यस, इतना श्योर है कि बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, उनको इतने छोटे से वॉल्यूम में बाइंड करने के लिए सम एनर्जी, सम वर्क इज टू बी डन, और सम एनर्जी इज नीडेड, राइट? That energy is known as binding energy. As the name suggests, binding energy is what? The energy needed to bind the nucleus, right? Energy needed to bind the nucleons from infinite distance to inside the nucleus. मतलब infinite distance से nucleons को लेके आना, and you have to bind them inside a very small region. तो जो उसको बाइंड करने के लिए एनर्जी लगती है, दैट इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। ओके, हेलो, यस सर, इज इट क्लियर? सो दैट इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी, राइट? या इसका कॉन्वर्स भी आप, अपोजिट प्रोसेस से भी आप समझ सकते हो। एनर्जी रिलीज्ड व्हेन ईच ऑफ the nucleon is separated or removed from the nucleus and separated to infinite distance and taken to infinite distance is known as binding energy. Okay, energy needed to bind the nucleus, yeah, energy released when all the nucleons are taken to infinite separation is known as binding energy. Okay, हाँ सर। अगर तो शायद मैंने कुछ गलत, क्या बोल दिया मैंने? एनर्जी नीडेड बेसिकली टू डिसेंबल द, मतलब ये न्यूक्लियस बना हुआ ना, इससे सारे पार्टिकल्स को निकाल के सेपरेट करने में जो एनर्जी लगती है, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी। शायद मैंने उल्टा बोल दिया कि एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज नहीं होगी, यू विल हैव टू डू सम वर्क। सी सर कैसे? अभी ये मतलब अंदर कुछ फोर्सेस हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, वो उनको होल्ड करके रखते हैं। अगर आपको सेपरेट करना है, वो न्यूक्लियंस को, सेपरेट तो आपको वर्क करना पड़ेगा, यू विल हैव टू स्पेंड सम एनर्जी। सॉरी, सेपरेट खुद भी हो सकता ना? हेलो सर नहीं, सेपरेट खुद से होना होता तो हो ही नहीं जाता खुद से, किसी ने पकड़ के थोड़ी रखा हुआ है। हेलो, तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लाना ही नहीं है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अभी उसके अंदर और भी फोर्सेस है ना पिक्चर में,
न्यूक्लियर फोर्सेस भी हैं, वो अट्रैक्टिव फोर्सेस है, वो 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो आप इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रिक रिपल्शन की नजर से देखोगे तो फिर आप मुझे बोलो ना, फिर क्यों रुके हुए हैं? उनको तो ऐसे भाग जाना चाहिए इधर उधर। सर पर तो एटम और के अंदर और कैसे? न्यूक्लियस के अंदर सर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के अलावा भी और पार्टिकल्स होते हैं ना, तो उसका उनके ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ता बाइंडिंग एनर्जी का? नहीं होते, किसने बोला? अरे किसने बोला नहीं होते ना कोई पार्टिकल? अब वो प्रोटॉन ही किसी और पार्टिकल से बना हो, ऐसा बात दूसरी है। आपके सिलेबस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन और फंडामेंटल पार्टिकल्स, आप इनको नहीं तोड़ेंगे। नहीं समझा? सी एज पर आवर सिलेबस प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर फंडामेंटल पार्टिकल, सब कुछ इनसे ही बना हुआ है। वो बात और है कि प्रोटॉन टूट सकता है, न्यूट्रॉन टूट सकता है, उसको टूटने से कुछ और पार्टिकल्स बनेंगे, या दे देमसेल्फ आर मेड अप ऑफ सम डिफरेंट पार्टिकल्स, वो दूसरी स्टोरी है। बट वो अपने बियॉन्ड सिलेबस है, उसको अपन साइड रख देते हैं। आप तो ये सोचो कि सिर्फ फंडामेंटल पार्टिकल्स में कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन। आप प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहाँ पे होल्ड किए हुए अपने न्यूक्लियस में, राइट? उनको सेपरेट करना है अगर आपको, तो कुछ एनर्जी आपको स्पेंड करनी पड़ेगी, दैट इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू सेपरेट द न्यूक्लियंस फ्रॉम, और अगर होल्ड करना बोलेंगे तो एनर्जी न्यूक्लियस के रिलीज होगा? लेके इन्फिनिट डिस्टेंस। सॉरी, अगर प्रोटॉन्स को होल्ड करने हाँ। बोलेंगे तो रिलीज होगा क्या एनर्जी? प्रोटॉन्स को होल्ड नहीं करने बोलेंगे तो मैं समझ नहीं पा रहा। सी, अगर आप इसको डिसेंबल करना चाहते हो, किसी ने उनको होल्ड करके रखा, जैसे बॉन्ड है, जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, राइट? हाँ। अब वो बॉन्ड तोड़ना है तो आपको उनको सेपरेट करना है, तो आपको वर्क करना पड़ेगा ना। हाँ तो सर वही बोल रहा हूँ ना, तो बॉन्ड रखने के लिए हाँ, तो एनर्जी रिलीज होगी ना अगर क्या रखेंगे बोला? तो। बॉन्ड अभी प्रोटॉन्स को रखेंगे मतलब रिलीज ही होती रहेगी, बस है वहां पे। और जब बना था तब एनर्जी रिलीज हुई होगी। हाँ हाँ वही पूछ रहा हूँ। हाँ, जब बना होगा तब एनर्जी रिलीज हुई होगी। अभी इसको डिसेंबल करना है आपको, असेंबल करने में एनर्जी रिलीज हुई होगी, दैट एनर्जी इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। अब इसको अगर आपको सेपरेट करना है तो आपको वर्क करना पड़ेगा, राइट? ओके? यस सर। तो यूजुअली इट इज डिनोटेड बाय EB. EB is what? Binding energy. That is amount of energy, that is amount of energy needed to separate the nucleons, to infinite distance. Or the energy was released when this nucleon was formed. ऐसा कह लो आप। The amount of energy liberated when the amount of energy liberated when nucleus was formed. So the amount of energy liberated when the nucleus was formed is known as binding energy. EB से हम लोग usually denote करते हैं, right? Now, क्वेश्चन है ये एनर्जी आई कहाँ से होगी? From where does that energy comes? जो एनर्जी लिबरेट हुई थी न्यूक्लियस फॉर्म होते वक्त, तो वो कहाँ से रिलीज हुई होगी, कैसे आई होगी, कहाँ से आई होगी? सो वो आती है मास डिफेक्ट से। इफ यू रिमेंबर आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन, कि मास कैन आल्सो बी कन्वर्टेड टू
energy, or in fact mass is also a form of energy, mass energy बोलते हैं. So if mass m is completely converted energy, then E is equal to mc square energy is released. If m be the mass which is completely converted in energy and c be the speed of light, then energy liberated by consumption of that mass is mc square. So E is mc square, right? Now जब भी न्यूक्लियस फॉर्म हुआ था तो मास डिफेक्ट आया था, डेल्टा एम इज वन, मास डिफेक्ट. तो ये मास ही एक्चुअली एनर्जी में कन्वर्ट हो गया था. If delta m be mass defect, then binding energy of that nucleus EB is what? Delta m into c square. What? EB is delta m into c square. Hello. हाँ सर. So binding energy of a nucleus कहाँ से आती है? It comes from the mass defect. Mass defect कितना है? Mass defect क्या है? डेल्टा m. तो डेल्टा m हो गया mass defect into c square. वही mass energy में convert हो गया था, right? Okay. Now एक छोटा सा कैलकुलेशन भी दिखाया था कि if 1 AMU be the mass defect, if delta m be 1 AMU. 1 AMU क्या आता है? 1 unified mass क्या आता है? 1 U is 1.66 into 10 raised to minus 27 kg. अगर ये अमाउंट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ तो कितनी एनर्जी रिलीज होती? तो ये शॉर्टकट याद रखना होता है. 1.66 into 10 raised to minus 27 into c square. That is 9 into 10 raised to 16. इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लो तो डिवाइड बाय 1.6 into 10 raised to minus 19. तो कितना हो गया ये? into 9, तो 5 by 3 is 15, 150 by 16 into 10 raised to, है ना भाई, 35 10 raised to 8, ये हो गया 9 समथिंग मिला के, तो ये इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. दिस इज नियरली 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये आपको याद रखना. So if one unified mass, 1 U mass is completely converted into energy, how much energy is liberated? 931 mega electron volt. This much energy is liberated. तो ये शॉर्टकट है, कई क्वेश्चंस में काम आता है. ओके, समझा? हाँ सर. यस सर. हाँ ना, ये हो गया आपका बाइंडिंग एनर्जी. Now there is one more important word, binding energy per nucleon. What is that? Binding energy per nucleon. So if we talk of nuclear stability, now this is very important topic है. बोर्ड एग्जाम में न्यूक्लियर स्टेबिलिटी की हम बात करें. न्यूक्लियर स्टेबल क्यों होता है? टू एक्सप्लेन न्यूक्लियर स्टेबिलिटी वी हैव अ बेटर वर्ड, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. सी, अगर बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है तो न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होना चाहिए या बाइंडिंग एनर्जी कम होने से? कम. नेचुरली ज्यादा होने से ज्यादा स्टेबल होना चाहिए. नहीं समझा? हेलो, एक और बार भाई, अगर से 2 गांव हैं, एक गांव में पैसे सबके पास मिला के पैसे ज्यादा हैं, इसके पास पैसे कम है, तो कौन सा गांव में इकोनॉमी ज्यादा स्टेबल है? हेलो, ये तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा. 2 गांव है, एक में पैसे ज्यादा है, एक में पैसे कम है, तो किस में ज्यादा इकोनॉमी स्टेबल होगी? डिपेंड ज्यादा वाला. कितने लोग हैं, डिपेंड करता है ना सर कितने लोग हैं. हाँ, वो भी ये डिपेंड्स कितने लोग हैं. कितना भाई पैसा? ये बड़ा गांव है, 1000 लोग हैं, राइट. इनके पास सबके मिला के 10⁷ रुपीज 1 करोड़ है, राइट. एक के हिस्से में कितने आया? एक के हिस्से में आया कितना?
10⁴ 10,000 रुपीज पर हेड है। ये छोटा गांव है, 100 ही लोग हैं, लेकिन इनके पास मिला के कितना 1 करोड़ है। 1 करोड़ से थोड़ा कम भी होगा, तो ये ज्यादा स्टेबल है। पर हेड 1 लाख रुपीज है। ये मैं कहता हूँ थोड़ा सा कम भी होगा, मतलब 80 लाख है तो 80,000 पर हेड हो गया, तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया ना। ठीक है, ऐसे बाइंडिंग एनर्जी का बाइंडिंग एनर्जी टोटल बाइंडिंग एनर्जी इस न्यूक्लियस की ज्यादा है, इसकी कम है। इसकी बाइंडिंग एनर्जी टोटल है, लेट अस अज्यूम 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 100 इलेक्ट्रॉन, हाँ 100 MeV है, और इसकी समझो 120 MeV है। तो ऐसा देख के पहले में ऐसा लगता है जैसे ये ज्यादा स्टेबल होगा, बट कैसे मालूम आपको? हो सकता है इसमें 80 न्यूक्लियॉन्स हो और इसमें से 40 ही हो, तो पर हेड यहाँ पर 2.5 आ रही है, यहाँ पे पर हेड आपकी 1.5 आ रही है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगी ना। तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी देख के आप न्यूक्लियस के स्टेबिलिटी का अंदाजा नहीं लगा सकते। यू कैन नॉट एस्टिमेट द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस बाय सीइंग द टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दैट न्यूक्लियस। इंस्टेड अगर आपको टोटल बाइंडिंग एनर्जी समझनी है, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी समझनी है, तो आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पे ध्यान देना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? you'll have to see binding energy per nucleon, right? So next topic is binding energy per nucleon. Binding energy per nucleon, usually it is denoted by capital EBN. ऐसा लिखते हैं हम लोग, binding energy per nucleon, right? So naturally, what is it? Binding energy per nucleon is total binding energy of nucleus upon nucleon number, yeah, mass number of the nucleus, yeah, atom, yeah, element, right?